Very good morning, students of class 10th. Today's topic of your economics, money and credit, chapter 3. Evolution of money with different stages. And here I am Poonam Prasad, your social science teacher. Students, in our earlier classes, we came across with the definition of money and then its need in the society, the different you can say disadvantages of barter system or the meaning of barter system. Fine. Students, in our today class I would like to take your evolution of money with different stages. Basically if you are talking about the evolution of money, बेटा हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था अबाउट द बार्टर सिस्टम और बार्टर सिस्टम के बहुत सारे डीमेरिट्स. Children, in today's class we are dealing with the evolution of money. Money का किस तरीके से उत्पत्ति, it means the origin of money. How can it come as an integral part of our society, or it gives a sign of a human civilization. So all these stages are come up in terms of 5 categories. Fine. It means the evolution of money, it has been in the 5 main stages of the development. You can say in terms of economic development, and you can also term in the sense of human development. क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी सिविलाइज्ड होती गई वैसे वैसे ही आपका जो मनी था उसने अपने फेसेस को वो उन्होंने फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू स्टिल आप देख रहे हो टुडेज द वर्ल्ड इज़ इन द मॉडर्नाइजेशन. सो वी कैन ऑल्सो सी द मॉडर्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द मनी, or you can say in terms of the currency. Fine. So let's we have the different stages of the development of your money. Let's we have a first one. Children, in ancient period of time, if I am talking about the first one, the first is in the ancient time there are different commodities can be used. Different commodities can be used like rice, wheat, oil, etc. Also, the cattle were used as in many countries. The mostly in the earliest form of you can say of this stages of this particular stage, various goods like knives, seashells, precious stone, camels, goat, horses, shoes, tobacco, these bones, beads, all these are considered as a form of money during that period of time. It was considered as the medium of exchange. Fine. So we also called it as a barter system in the form of the barter system, क्योंकि ये stages barter system और barter system से related stages थे किस तरीके से एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में. और बेटा हर कंट्री के अपने अपने जो कहते हैं ना कि इकोनॉमिक उनका डेवलपमेंट था, एक ट्रांजैक्शन डेवलपमेंट था इन द टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी. द सेकेंड इज कॉल्ड एज, if we are talking about the second stage, this stage is the origin of your metallic coins. When the stages develop, when the society developed, in due courses of time, most of the countries found that metallic coins like iron, copper, silver, gold, they were more suited to serve as money. Students, iron and copper were very much dominated in this period where the metals were used as a form of transaction or as a form in the form of medium as a exchange. But problem kya thi? While in the
trading system during that period of time, the traders or the merchants, they carried the weighing machines and the tools to cut the metals. It was a cumbersome job for the traders, क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम में जो मेटल्स थे उनको ले जाना एक भारी भरकम, ऊपर से वेइंग मशीन को ले जाना, कटर्स को, जो वो कटर्स जो मेटल्स को काटते थे उनको ले जाना साथ में, तो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा कम्बर्सम और टायरिंग जॉब था, ठीक है। और ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ पोर्टेबिलिटी। जैसे हमने फर्स्ट स्टेज का भी लिमिटेशन देखा कि किस तरीके से लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट या डिवाइजिबल लैक इन टर्म्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज का लिमिटेशन था। वहीं पे सेकंड स्टेज के लिमिटेशन में जो कैरिंग कैपेसिटी थी, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ पोर्टेबिलिटी और कैरिंग अलोंग फॉर द ट्रेडर्स और द मर्चेंट, वो सारी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस थी सेकंड की। Then comes to your third stage. Students, third stage the third stage were considered as a coinage. यहाँ पे coinage full on था in terms of society में, इसका circulation, coins हम लोग कह सकते हैं। So the first जो limitation थी second stage की portability वाली, the problem of portability that it gives the metals led to the natural development of coinage. Coinage means now the precious metal is predominated, weights were oftenly, they stamped with the face of king or queen and with another stamp to show their you can say value. आपने देखा होगा हिस्ट्री में भी, आपने देखा होगा कि हर डायनेस्टीज़ की अपनी अपनी कॉइन्स हुआ करती थी। बेटा कहीं ना कहीं मेटालिक कॉइन्स आए, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर कॉइनेज था और वो कॉइनेज जो सर्कुलेट हो रहा था इन द सोसाइटी, वो अल्टीमेटली लीड किया टूवर्ड्स दिस स्टेज predominated by you can say the the silver, the gold, copper, iron, etc. Students, precious metals इनको stamped out किया जाता था with the face of king and queen. आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से अशोक के किस तरीके से अशोका पीरियड इन द अशोका डायनेस्टीज़, यू कैन से गुप्ता डायनेस्टीज़, मौर्यन डायनेस्टीज़ और डायनेस्टीज़ जो कि आपके मुग़ल वंश में आया, उन सब में लोगों ने किस तरीके से तरह तरह से उन्होंने स्टैम्प्ड आउट किया ऑफ देयर कॉइन्स, है ना। और जो सबसे ज़्यादा जो किंग्स और क्वीन इस्तेमाल करते थे कॉइन का, वो इस्तेमाल होता था सिल्वर और गोल्ड। खासकर सबसे इम्पॉर्टेंट था कि कोई भी ओकेजन्स पे किंग और क्वीन अपने गोदामों अपने खजानों को खाली करते थे फॉर यू कैन टू सेलिब्रेट देयर, चाहे वो उनके मैरिज सेरेमनीज़ होती थी या बर्थडे सेरेमनीज़ होती थी, इस तरह के ऑस्पिशियस डे पे वो कहते नहीं थे कि वो बांटते थे पुअर पीपल के बीच में कॉइन्स को। और ट्रेडिंग कहीं ना कहीं लिटिल बिट पोर्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी, जो सेकंड स्टेज पे प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से ओवरकम हुआ इन द थर्ड स्टेज, ठीक है। और एक उन कॉइन्स की अपनी वैल्यू बना के उसको सर्कुलेट किया जाता था सोसाइटी में। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे भी थी बेटा। प्रॉब्लम कैसे थी? कॉपर का चलन, यानी कि कॉपर से बने सिक्कों का चलन आम व्यक्तियों के लिए किया जाता था। स्वर्ण मुद्राएं या सोने और चांदी की मुद्राओं का ये राजा और जो रॉयल फैमिली थे वही इस्तेमाल करते थे। कॉमनर्स के लिए आपके तांबों का इस्तेमाल होता था अक्सर। जब तांबे ख़त्म हो जाते थे, तांबों के सिक्के, तो सोसाइटी में उसको सर्कुलेट करने के लिए जो वहाँ के कहते ना जो ठठेरे होते थे, उनके पास तांबे के बर्तन होते थे, उनको पिघला के और उसको कॉइन्स का शेप दिया जाता था।
जिस तरह से नकली नोट बनाए जाते हैं आज के सिनेरियो में, उसी तरीके से पहले भी नकली सिक्कों का चलन हुआ। आपके खजाने में से, यानी कि किंग ने अपने खजाने में से फॉर एग्जाम्पल 500 तांबों के सिक्कों को सर्कुलेट किया। मार्केट में 1000 सिक्के टहल रहे हैं, यानी कि 1000 सिक्के सर्कुलेट हो रहे हैं सोसाइटी। अब राजा को लगा कि ये 500 तो मैंने अपने खजाने में से निकाले, ये 500 और कहाँ से? तब वहाँ से शुरुआत होती है कहीं ना कहीं बेटा करप्शन। तो उनको डिटेक्ट किया गया और उसके बाद फिर राजा क्या करता था, फिर नए मुद्राओं को, नए सिक्कों को वो बनाता था। उनमें बहुत अलग अलग तरीक़ों के चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता था, खासकर मुग़ल कालीन शासकों ने। और इसके बाद चाहे वो उन्होंने अपने चेहरे को लेकर आए या फिर चेहरे ना करके सिर्फ कोई एक साइन या एक सिग्नेचर उस पर स्टैम्प्ड आउट कर देते थे। तो इस तरीके से जो वो थर्ड स्टेज था, इट वाज डोमिनेटेड बाय द कॉइन्स। सो दैट वाज कॉल्ड एज द कॉइनेज स्टेज। स्टूडेंट्स, now the fourth stage was considered as the paper money. Fine. हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखा। The first paper money was issued by the early goldsmith children who accepted the deposits of precious metal for keeping in their safe. In return, it means the goldsmith issued a paper receipt to the owner, and this was the first time that the goldsmith was considered as the first bank, and that receipt was considered as the paper money. Students, जब लोगों का मूवमेंट बढ़ा, ट्रेडिंग बढ़ी, और ये भी देखा गया कि किस तरह से कॉइन्स मूव करने लगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कॉइन्स अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे जाने लगे, है ना, उनको ले जाया गया। अगेन अगर हम इकट्ठा करते हैं कॉइन्स, तो वो कॉइन्स हेवी होते थे। अगेन द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी as a challenge in front of the traders, it occurred during that third period of stage 2. तो फोर्थ पीरियड में अब क्या हुआ कि ट्रेडर्स जब मूव करने से पहले उनके पास अगर गोल्ड होता था या कोई भी उनके पास एसेट होता था, तो दे डिपॉजिट स्पेशली द प्रेशियस मेटल, चाहे वो सिल्वर, गोल्ड होते थे, उनको वो गोल्डस्मिथ को दे दिया करते थे। गोल्डस्मिथ मीन्स, है ना, सुनार, उनको दे दिया करते थे। तो गोल्डस्मिथ दे कीप देयर प्रेशियस मेटल इन देयर सेफ। बेटा, यहाँ से शुरुआत होती है बैंकिंग सिस्टम की, और इसके बदले गोल्डस्मिथ उनको रिसिप्ट दे दिया करते थे। दैट रिसिप्ट वॉज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट रिसिप्ट इन द फिफ्थ स्टेज, क्योंकि फिफ्थ स्टेज वॉज कंसिडर्ड एज द continuation of your fourth stage student. गोल्डस्मिथ जो रिसिप्ट कर दिया करते थे फॉर द डिपॉजिट ऑफ प्रेशियस मेटल टू द ओनर, इट बिकम द फर्स्ट पेपर मनी, एंड गोल्डस्मिथ वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बैंक। स्टूडेंट, ये बैंकिंग सिस्टम आज भी चल रही है। बैंकों में गोल्ड को सबमिट करके जो बैंक है उसके अगेंस्ट में पेपर नोट को सर्कुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हम कहें विच बैंक इशूड करेंसी, सो योर आंसर शुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट to issue the paper notes and the paper notes, or you can say currency, coins, etc. हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है बेटा। भारत का सेंट्रल बैंक, व्हाट वी कॉल्ड इट एज द इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजर्व बैंक। इफ द क्वेश्चन अराइजेस
वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? तो आपका आंसर होगा मुंबई बेटा। एक और चीज़ बच्चे, आपको बताना है मुझे विच इज हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ इंडिया, और कितने डिनोमिनेशंस के पेपर नोट अभी चल रहे हैं। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज द, सो हम लोगों ने देखा किस तरह से फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज वॉज कंसिडर्ड एज द कमिंग अप ऑफ योर मॉडर्न करेंसी जो आज हम लोग देख रहे हैं। हाँ, आज की करेंसी भी कहीं ना कहीं मूव आउट कर रही है इनटू द प्लास्टिक मनी में। अब हम लोग पैसे को अपनी जेब में लेकर नहीं चलते, हम लोग क्या लेकर चलते? कार्ड्स, है ना बेटा। तो ये अल्टीमेटली क्या है? एक नया रूप है। किसका नया रूप है? आपके टुडे मनी का। मनी इन अ टुडेज वर्ल्ड, मनी इन अ टुडेज इकोनॉमिक सिनेरियो। फाइन स्टूडेंट्स, सो this is all about your evolution of your you can say मनी। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है कि नेम द मेटालिक कॉइन्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द अर्ली पीपल। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट the most important topic is your characteristics of money and its role in the country's economy. So let's we have the characteristics of good money. Students, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बार्टर सिस्टम को पढ़ रहे हैं और बार्टर सिस्टम के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं वो गुड मनी के एडवांटेजेस बनेंगे। कैसे? For example, let's we have a first look on the acceptability. 200 rupees का नोट we are accepting it. The entire society accepted 2000 rupees note. हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। So anything can be used as a money as long as it is when it is generally acceptable. That is why the worthless piece of paper can be used as a 100 rupee note when it can be issued by Reserve Bank of India. है ना बेटा? आए समझ में? इसका मतलब है हमने उस करेंसी नोट को एक्सेप्ट किया है अपनी सोसाइटी में। डीमोनेटाइजेशन कितने तारीख को हुआ और कब हुआ? है ना? जिस दिन डीमोनेटाइजेशन था उससे उस रात्रि को जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपये को नोट को बंद करने की घोषणा करने से पहले आपके पूरे भारतवर्ष में किसका चलन था बेटा? 100 and 500 and 1000 नोट का। बट ग्रेजुअली इट चेंजेस ऑन और अगले ही दिन से 1000 और 500 के नोटों को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली। इज दैट क्लियर? एक्सेप्ट द बैंक्स, उसके अलावा लोगों ने 500 और 1000 नोट को एक्सेप्ट नहीं किया। सो दैट वन, आज भी पुराने 100 रुपीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है और 1000, लेकिन हाँ बेटा अब 1000 रुपीज़ हमारे चलन में या प्रचलन में नहीं है। 25 पैसा भी नहीं है, 50 पैसा भी नहीं है। आप अपने ग्रैंड मदर या अपनी मदर से पूछिएगा क्या उन्होंने लोवेस्ट डिनोमिनेशन के मनी को भी देखा है, कॉइन्स को भी देखा है? यानी पहले 2 रुपये, पहले 2 पैसे का सिक्का, 5 पैसे के सिक्के आया करते थे बेटा, 3 पैसे का, है ना। उसके बाद फिर उसके बाद 1 रुपये का नोट भी आता था। तो बेटा धीरे 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 एक्सेप्टेबिलिटी हम कब करेंगे? जब हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसको इशू करता है। द सेकेंड इज कॉल्ड एज द ड्यूरेबिलिटी।
Durability means money must be durable, that is not likely to deteriorate rapidly with frequent handling. आज हम लोग देखते हैं हमारे पास हमारे गुल्लक में 10 साल के पैसे जमा होंगे, उसको हम फोड़ते हैं, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आता है, वरना वो पैसे वैसे के वैसे ही रहते हैं। हम पैसों को एक दूसरे के हाथों से लेते हुए काफ़ी दिनों तक उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि वो मनी जल्दी डिटोरिएट नहीं होता है, चाहे हम इसके मटेरियल की बात करें या हम उसको सेफली हैंडल की बात करें। The third is called as portability, easy to carry. Money should be easy to carry and it must be light in weight, beta. When we are comparing the today's money or today's currency with earlier times, so we can see that yes, it is quite portable. Then it comes to your divisibility. Yes, student, it is very much possible to divide the money in a bigger value, in a large value, into a smaller value, right? Of a large value into a smaller value. To make small purchases or to give, you can say, to give the money without losing its value. For example, if I would like to take, एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 100 रुपीज़ में the 100 रुपीज़ इट कैरीज विद 1 kg ऑफ योर मैंगोज, राइट? मुझे मैंगो बहुत पसंद है, इसलिए आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ मैंगोज ऑफनली. तो मैंगोज 1 kg इज इक्वल टू 100 रुपीज़, फाइन. मैंने कहा मुझे आधा किलो चाहिए, तो तुरंत वो मनी भी क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, दैट इज़ योर 50. ठीक है. अब अगर मैं 50 है तो मैं आई कैन गिव 10 रुपीज़, 5 10 रुपीज़ के या 50 का एक नोट उनको दूंगी. मैंने उनको 100 दिया तो इन रिटर्न मुझे 50 मिलेगा. तो ये जो भी मैथमेटिकल ट्रांजैक्शन है वो बेटा मैथमेटिकल ट्रांजैक्शन, और ये जो डिनोमिनेशन सॉरी आपके जितने भी लार्जर यूनिट को हम लोग स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो इट कैन बी ईजिली इनटू दिस मनी, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स डिवाइजिबिलिटी. और यही डिवाइजिबिलिटी कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी लैकनेस थी. देन कम्स टू स्केर्सिटी, कमी. बेटा हम कभी सोचते हैं ना कि पैसा पेड़ पे क्यों नहीं होता, पैसा स्टोन्स क्यों नहीं होते, क्यों नहीं ये भारी मात्रा में पाया जाता है? क्योंकि हमारा पूरा लाइवलीहुड, हमारा पूरा स्ट्रगल होता ही है टू गेट द मनी, बेटा. हाँ, सो इट इज़ वेरी मच वैल्यूएबल and we can earn money by hard work, है ना बेटा? और the commodity can be purchased by this. और इसकी कमी ये बहुताय नहीं है. अगर बहुताय होता तो इसकी लिक्विडिटी हो जाती, यानी कि ये काफ़ी मात्रा में ये पानी की तरह बहता नहीं है बेटा. ठीक है. देन लास्ट इज कॉल्ड एज cognizability. Students, the cognizability means money must be easy to recognizable and familiar to most of the people. हमें if a person is blind, he or she can also able to recognize the amount, recognize the money, है ना बेटा? उसी तरीके से हर व्यक्ति की को पहचान है नोट की, और गवर्नमेंट भी बनाते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि किस तरीके से इसकी सही पहचान की जाए, खासकर डुप्लीकेट और ओरिजिनल में. फाइन. तो इसकी कोग्नाइजेबिलिटी है, रिकग्नाइजेबिलिटी है, ये ईजिली टू रिकग्नाइज है बेटा. ठीक है बेटू. नेक्स्ट, अगर मैं आपसे स्कैरसिटी की और बात करूं तो pebbles on a beach could not be used as money. Why? Simply because anyone can pick them up. Only if money is scarce,
people will value it as a commodity that can be used in exchange. इसीलिए बेटा इसकी स्कैरसिटी है, हर कोई उसको नहीं उठा सकता, हर कोई उसको नहीं ले सकता, है ना। हर किसी के पास वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं है। तो अगर ये स्कैरसिटी इसकी नहीं होती, हमें पानी का महत्व तभी पता चलता है जब उसकी कमी होती है। उसी तरीके से मनी की का मनी मैटर तभी मनी की वैल्यू हम तभी करेंगे जब उसकी हमें कमी होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड money. Students, the last topic of today's class is the role of money in country's economy. अगर हम country की economy की बात करें तो money it can renders the invaluable economic condition of a country beta. Without the money we cannot able to think about the development of modern industrialized society, because it is totally depend on the money. Industrialization, infrastructure improvement cannot be possible without the influence of money beta. क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वी नीड टू हैव the influence from the side of the money. We have to distribution of public finances if we want to improve the standard of the living of a country, tradings, firms, educational development, health development, etc. And also to make a good जैसे कहते नहीं है कि हमें फॉरेन कंट्री से भी हम तभी अपने आप को सशक्त बना सकते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग हों, किसमें, मनी मैटर्स में, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? चाहे वो प्रोड्यूसर के लिए मनी इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो कंज्यूमर के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। चाहे वो कंजप्शन के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हो, चाहे वो HDI के इम्प्रूवमेंट के लिए हो। वी नीड what money as a source through which we can able to develop our country. Students, this is all about today's class. In tomorrow or in the next class I would like to take the different you can say functions of money. Is that clear beta? हम लोग gradually we are putting forward towards the completion of this chapter. So tomorrow I would like to take I would like to take the different functions of your money. Fine beta. So let's we conclude our chapter. Let's we conclude our topic, and just you have to revise the topic, write down the notes, and goodbye children. Take care.